دو مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی واحد خاتون بے نظیر بھٹو شہید کی برسی آج گڑی خدا بخش میں منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں شہید کیا گیا تھا۔ بلند حوصلہ اور سیاسی رہنما کی زندگی پر ڈالتے ہیں ایک نظر سنجے سادوانی کی اس رپورٹ میں۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے 17 سال بیت گئے۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1998 میں انہیں بیرون ملک جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ 2007 میں انہوں نے وطن واپسی کا اعلان کیا اور جان کا خطرہ ہونے کے باوجود 18 اکتوبر 2007 کو کراچی پہنچی، جہاں ان کے استقبالی جلوس پر دھماکوں میں سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی جلسے سے واپس جاتے ہوئے بے نظیر نے جب کارکنوں کو پرجوش نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی سے سر باہر نکالا، اسی دوران ان پر گولیاں برسا دی گئیں اور خودکش حملہ بھی ہوا۔ 2 بار وزیر اعظم بننے والی قوم کی محبوب لیڈر کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی زندگی کا مشن آج بھی جاری ہے۔ بلاول بھٹو والدہ اور نانا کی عوامی خدمت کا مقصد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری، مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے مزار پر بھی حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے مزار پر پھول رکھے۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ برسی کی مرکزی تقریب گڑی خدا بخش میں منعقد ہوگی۔ مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ بابو اقبال سے، بتائیے گا۔ جی، میں یہاں اس وقت گڑی خدا بخش بھٹو میں موجود ہوں اور آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ برسی کی تقریبات جو ہے اب سے کچھ دیر بعد 10 بجے قرآن خوانی ہوں گی اور قرآن خوانی کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ اجتماعی دعا کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد گڑی خدا بخش کے اندر کے احاطے کو عام کارکن اور رہنماؤں کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پر پھول چڑھا کے وہ ان کو عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد 2 بجے جلسہ شروع ہوگا۔ پہلے فیز میں جلسے کے مشاعرہ ہوگا اور اس کے بعد جلسہ شروع ہوگا۔ جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جیسے کہ یہاں پہنچ چکے ہیں صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وہ یہاں آئیں گے اور خطاب کریں گے۔ اور عین اس وقت جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت یہاں ایک خصوصی جو ہے وہ فلم بھی دکھائی جائے گی، اسکرین پہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ بھی چلائی جائے گی اور اس کے بعد جلسہ اختتام پذیر ہوگا۔ گوٹکی میں خانپور مہر کے قریب تیز رفتار کار نہر میں جا گری، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 2 کو زندہ بچا لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق کار میں 5 افراد سوار تھے۔ حادثے کا شکار 3 افراد کی لاشیں نہر سے نکالی گئی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں کئی مقامات پر مجلس وحدت المسلمین کا احتجاج جاری ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر سماما شاپنگ سینٹر کے قریب احتجاج ختم کر دیا گیا، جس کے بعد ٹریفک کی رہنمائی چورنگی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ٹریفک کو گرو مندر سے سولجر بازار کی جانب بھیجا جا رہا ہے۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر عباس ٹاؤن کے سامنے دونوں ٹریک بند ہیں۔ ٹریفک کو پیراڈائز بیکری فوریا چوک کے قریب بھیجا جا رہا ہے۔ 5 اسٹار چورنگی ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے۔ شارع فیصل پر کالا چھپرا کے مقام پر دونوں اطراف کی سڑکیں بند ہیں۔ ملیر 15 سے قائد آباد آنے والی سڑک بند ہے۔ ٹریفک کو ملیر ہالٹ سے ماڈل کالونی بھیجا جا رہا ہے۔ پرنگی 2.5 نمبر پر بھی دھرنا جاری ہے۔ ناصر جمپ سے لانڈھی جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ فوجی عدالت نے 2 سابق فوجی افسروں سمیت سانحہ 9 مئی کے مزید 60 مجرموں کو سزائیں سناتیں۔ جناح ہاؤس حملے میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کو 10 سال قید مشقت کی سزا ملی۔ سابق ایم پی اے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم چودھری کو 6 سال حوالات میں گزارنا پڑیں گے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اب تک 85 مجرموں کو سزا دے چکا ہے۔ مذاکرات کے دوران فوجی عدالتوں سے فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ سویلین کے مقدمے فوجی عدالتوں میں نہ چلانے کا فیصلہ دے گی۔ فوجی عدالتوں میں اپیل کا الگ نظام ہے۔ زیادہ تر سزا یافتگان نے اپیل کر دی ہے۔
तहरीक इंसाफ का एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चाहिए जो यूनिफॉर्म में हैं या वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके जरूर जो उनके मुताबिक हो, रादर देन के सिविलियन के लिए हो। यहाँ तक फिर जनरल कोर्ट मार्शल में अपील कराए थे तो वो एक अपीलेट फोरम प्रोवाइड जरूर है, लेकिन वो विद इन द रैंकिंग सिस्टम उनका है और वो इस किस्म का अपीलेट फोरम नहीं है जिस तरह सिविलियन या हाई कोर्ट के सामने आपका एक अपीलेट फोरम है, बल्कि फील्ड जनरल में एक अपीलेट का फोरम है। वो वहाँ होता है कि इंटरनल मामला है, उनका एक फॉर्म आ जाता है, आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है और उसके बाद आपको एक राइट ऑफ अपील अक्रू होता है। ज्यादातर लोगों ने कर लिया और जिनको नहीं मिली वो सर्टिफाइड कॉपी उन्होंने अपीलें नहीं की, लेकिन जो ही मिलेगी उसमें भी अपीलें फाइल। मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर ये था कि मिलिट्री जो 9 मई के केसेज है ये उसमें नहीं हो सकते, सजाएं सुना सकते हैं, लेकिन उसका फैसला क्या होगा वो सब्जेक्ट टू द पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला अगर करेगी तो सिविलियन के हक में फैसला आएगा कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं था जब इतनी ताखीर हो गई थी और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो बेहतर था कि ये मैटर ये अनाउंस ना होता ताकि नेगोशिएशन जो जिसमें एक ही मुतालिबा यही है वो उस पर भी कोई बातचीत आगे बढ़ जाती। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। फैसले से इंसाफ का बोल बाला हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना, आइन के तहत मुजरिमों को सजाएं दी गई। मिलिट्री एक्ट पार्लियामान ने पास किया। वर्दी की बेहरमती करने वाले को सजा दी गई। आइंदा कोई मुल्क में इंतशार फैलाने की जुर्रत नहीं करेगा। बानी पीटीआई ने अपने साथ रवा सलूक पर आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद खान ने बताया, बानी ने कहा है कातलाना हमले भी माफ़ करने को तैयार हैं। बानी की रिहाई किसी डील या कागज़ पर दस्तखत से नहीं होगी। बानी पीटीआई अपने मुकदमों का सामना करके बाहर आएंगे। साहब ने ये कहा है अपने पर होने वाले कातलाना हमले, अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा। अपने मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की पहले भी मजम्मत की, आज भी करते हैं। आइन के आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ मौजूद है। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। दिन मिलिट्री कोर्ट्स ने ये सजाएं सुनाई थी पहले बैच को, उस दिन भी मैंने कंडेम किया था, आज भी कंडेम कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कंडेम किया, मुज़ामत की है। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होने चाहिए। बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है, सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है, तय हुआ था कि बैरूनी माहौल को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। पीटीआई जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की, जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। कमेटी के पहले इजलास के दिन बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था, आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनल के बयानात पर नहीं बनती। ग्रेनल हमारे लिए गैर अहम हैं, हम आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बानी पीटीआई से पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। 26 नवंबर को 90% मामला तय हो चुके थे। पीटीआई रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन कहते हैं बुशरा बीबी अब पार्टी मामला से पीछे हट गई हैं। बानी पीटीआई भी नहीं चाहते बुशरा बीबी सियासत में हो। के साथ पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं जारी। हाँ जी, डेफिनेटली काफी हद तक जो मुझे बताया गया कि जो ये 26 को हुआ था, किसी ने गड़बड़ कर दी, कोई बयान सख्त आ गया, तो वरना 90% हो गया हुआ। बुशरा बीबी के रोल को आप कैसे देखें? इख्तलाफत है। आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी अब पीछे हट गई है, हट गई। मेरे जो मुझे और खान साहब भी नहीं चाहते। क्या आप तस्लीम करते हैं इस हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? सहाफ़ी का बानी पीटीआई से सवाल। बानी ने कहा करंट अकाउंट खसारा रुक गया लेकिन मईशत तरक्की नहीं कर रही। सियासी इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती। निजी चैनल पर बानी पीटीआई से मंसूब बयान गलत और बेबुनियाद है। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बानी ने कहा था कि हुकूमत ने शरह सूद और महंगाई के ग्राफ में कमी के लिए मईशत बंद कर दी। ये कोई इस्तेहकाम नहीं, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई है। मईशत उस वक्त बेहतर होती है जब सरमायाकारी हो, रोजगार के मौके पैदा हों।
ایک نجی چینل نے خان صاحب سے ایک بیان منسوب کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ چلایا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، یہ ضرور کہا کہ اس حکومت نے پوری معیشت بند کر دی ہے صرف ریٹ آف انٹرسٹ اور انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے۔ یہ کوئی استحکام نہیں ہے۔ معیشت تب بہتر ہوتی ہے جب یہاں پہ سرمایہ کاری ہو، نوکریاں پیدا ہوں، اس کے مواقع پیدا ہوں۔ جہاں کوئی قانون نہیں ہے ایسے ملکوں میں لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے ہیں۔ معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے اور کسی وقت بھی کلیپس ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈاپور کو مسلسل عدم پیشی پر اشتہاری قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تھانہ حسن عبدال میں جلاؤ گراؤ کیس کی سماعت ہوئی۔ اے ٹی سی نے علی امین گنڈاپور کے اشتہار جاری کرنے اور 21 جنوری تک پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کے پی حکومت کرم ایجنسی کی سڑک نہ کھلوا سکی۔ کرم میں ایک دن میں 25 سے 30 بچے فوت ہو گئے۔ فوجداری مقدمات میں وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والے فرد کو سرکاری خرچ پر وکیل فراہم کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس کے حکم پر 2 رکنی ججز کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان شامل ہیں۔ کمیٹی سپریم کورٹ کے وکلاء کے پینل کی منظوری دے گی۔ وکلاء کے پینل سرکاری خرچ پر ملزمان یا سزا یافتہ افراد کی نمائندگی کریں گے۔ سرکاری خرچ پر وکیل کے طور پر تقرر کے لیے پینل میں شامل وکلاء سے درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ سرکولر میں کہا گیا درخواستیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام 4 جنوری تک ارسال کی جائیں گی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں، 13 خارجی جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران میجر محمد اویس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں کارروائی کے دوران 6 خارجی ہلاک، 8 زخمی۔ جانی خیل بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا بہادر سپوتوں کی قربانیاں فورسز کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ 33 سالہ میجر اویس شہید کا تعلق ضلع نارووال سے تھا۔ 10 سال دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا۔ سوگواران میں اہلیہ، بیٹا، والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید میجر اویس کو خراج عقیدت، کہا پوری قوم شہید کو سلام پیش کرتی ہے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پارا چنار کی صورتحال پر MWM کے احتجاجی دھرنے تاحال جاری ہیں۔ شہر کے مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بحال ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، پارا چنار واقعے کے بعد کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں مذہبی جماعت کی جانب سے احتجاجی دھرنا جاری ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ٹریفک جام رہا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ رات بھی شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے، شاہراہوں پر لمبی قطاریں لگی رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 اسٹار چورنگی، عباس ٹاؤن، ابو الاسفانی روڈ، کورنگی نمبر 2.5 نمائش چورنگی کے جگہوں مقامات پر مذہبی جماعت کی جانب سے اس وقت بھی احتجاجی دھرنا جاری ہے، جبکہ ٹریفک پولیس حکام کا بتانا ہے کہ احتجاجی دھرنا تو جاری ہے لیکن ٹریفک کی روانی بحال ہے۔ ہم اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہیں۔ نمائش چورنگی پر بھی مذہبی جماعت کی جانب سے کیمپ لگایا گیا ہے۔ ایک سڑک جو ہے نمائش سے گرو مندر جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے، جبکہ گرو مندر سے نمائش ایم اے جیرا روڈ کی طرف آنے والی سڑک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھولی گئی ہے۔ جی، جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچ کی تشکیل نے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا۔ سپریم کورٹ بینچ بنانے میں ایگزیکٹو کی مداخلت قابل مذمت ہے۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی تمام کارروائیاں معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بھی کہا 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سماعت کی جائے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کا بیان مسترد کر دیا۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رد عمل کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ بار کے بیان پر رد عمل میں وکلا ایکشن کمیٹی نے کہا جوڈیشل کمیشن پاکستان اور عدلیہ کی آزادی سے متعلق جائز آواز اٹھائی۔ سپریم کورٹ بار کی جانب سے کمیٹی ارکان کو غیر منتخب قرار دینا درست نہیں۔ کمیٹی کے ارکان مختلف بارز اور بارز ایسوسی ایشن کے منتخب نمائندے ہیں۔ ارکان پر اعتراض وکلا کے پیشے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ کمیٹی ارکان جمہوری عمل کے ذریعے منتخب قانونی برادری کے نمائندے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کی موجودہ قیادت کا سابقہ قیادت پر اعتراض بلا جواز ہے۔ سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کے پیغامات پر یقین نہ کریں۔
2 रोज से अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच का कहना है अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ दोनों मुल्कों की मुश्तरका कार्रवाई की ज़रूरत है। सिक्योरिटी इदारे सरहदी इलाकों में एहतियात से ऑपरेशन करते हैं। अफगानिस्तान से गुफ्तगू में सरहद पार दरअंदाजी को बार बार उठाया, चाहते हैं अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान को जिन दहशत गर्द अनासिर से खतरा है उनके ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से हल निकालना चाहते हैं। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस खातून समेत 2 स्मगलर गिरफ्तार। FIA गुजरावाला जोन की जानिब से कार्रवाई की गई। तर्जुमान FIA का कहना है खातून ने साथियों के हमरा शहरी को लीबिया से यूनान भिजवाया। मुलजिमा ने मजमूई तौर पर मुतासर शहरी से 45 लाख रुपए लिए थे। दूसरा मुलजिम अब्दुल्ला शहजाद 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में भी मुलविस है। तर्जुमान FIA का कहना है मुलजिम ने शहरियों को यूनान भिजवाने के लिए फीकस 29 लाख लिए। इश्तिहारी मुलजिम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी गैंग का रुकन है। मुलजिम अब्दुल्ला शहजाद के खिलाफ गुजरावाला सर्कल में मुतादिद मुकदमात दर्ज है। मुतासरा शहरी को यूनान कश्ती हादसे में रेस्क्यू कर लिया गया था। कब्जा माफिया का सताया पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी कराची में ARY के दफ्तर पहुंच गया। कहता है थाना कचहरी करके थक चुका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कब्जा माफिया से अराजी वागुजार कराएं। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। टेक्सटाइल और लेदर के कारोबार से मुंसलिक काजी लियाकत कुछ बरस कबल कनाडा मुंतकिल हुए। वहाँ मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ उन्होंने मंसूबा बनाया कि हब डैम के करीब उनकी 16 एकड़ अराजी पे तिजारती मंसूबा शुरू किया जाए ताकि पाकिस्तान को फायदा हो, मगर उनकी अराजी कब्जा माफिया ने हथिया ली। जमीन पे कब्जा हो गया, हमने थाने में दरखास्त दी, थाने वाले जो है ना वो हमें दौड़ाते रहे। सारे मराहिल तय होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो सका और हम उधर ही हैं, जमीन पे कब्जा बरकरार है। थाना कचहरी से मायूसी के बाद काजी लियाकत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपील की है कि उनकी अराजी वापस दिलाई जाए। आर्मी चीफ से मुतालबा ये है कि इस सूरत हाल का कोई नोटिस लिया जाए और कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारी दादरसी हो सके। हम लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। काजी लियाकत कहते हैं कि सरकारी इदारों की नाअहली के सबब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ताजिर यहाँ सरमायाकारी से डरते हैं। मामलात दुरुस्त हों तो पाकिस्तान पैसा लगाने के लिए बेहतरीन मुल्क है। कैमरामैन अदील खान के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। और खानेवाल में महकमा लाइव स्टॉक ने मवेशी पालने वाले किसानों को छोटे पैमाने पर बिला सूद कर्ज देने के लिए तकरीब का एहतमाम किया तो डिप्टी कमिश्नर और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट कई घंटे ताखिर से पहुंचे, जिस पर किसान फट पड़े। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया सरकारी अफसरान और हुकूमती अरकान को वक्त का पाबंद बनाए। रिपोर्ट करें साजिद खान। आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से गोश्त के लिए मवेशी पालने वाले किसानों को छोटे पैमाने पर बिला सूद कर्ज फराहम करने के लिए महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान, MNA मोहम्मद खान डाहा और MP राना सलीम ने करना था। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से दिन 11 बजे से खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों से गरीब किसानों को बुलाकर अफसरान और अरकान असम्बली के इंतजार में बिठा दिया गया। गरीब किसान कई घंटे तक चंद मीटर की दूरी पर मौजूद अपने दफ्तर में बैठी डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान का इंतजार करते रहे। डिप्टी कमिश्नर और MNA 3:30 बजे पहुंचे और इंतजार की सूली पर लटके किसानों को कार्ड फराहम किए। सर असी 11 बजे आए सी सुबह तो हुण 4 बजे कार्ड मिले वा सानू तो इंतजार कर के चलो एक कार्ड मिलते गया। DC साहब भी लेट आए ने, फिर MP MNA साहबान भी लेट आए ने काफी, 3 बजे तो बाद ही पहुंचे ने। हाल दे विच तकरीबन 3:15 बजे पहुंचे ने। इंतजार कर के ना ये हुण 4 बजे सानू कार्ड मिले जी, मिल तो गया लेकिन इंतजार बड़ी करनी पई है जी। किसानों और शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि सरकारी अफसरान और अरकान पार्लियामेंट को वक्त का पाबंद बनाया जाए ताकि इन्हें बिला वजह इंतजार की सूली पर ना लटकना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। कराची में महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की सुपर हाईवे पर कार्रवाई। निजी हाउसिंग सोसाइटी में छापा मारकर गैर मुल्की शराब की बोतलें बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल कोरंगी विंग के मुताबिक पहले से गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक मकान पर छापा मारा गया, जहाँ से 30 लाख रुपए से जायद मालियत की शराब की बोतलें बरामद हुई। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग ने शराब की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई, गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार, तमाम अफराद को FIA के हवाले कर दिया गया।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बलूचिस्तान के बॉर्डर से 151 गैर मुल्की तारकीन वतन को गिरफ्तार किया। ये तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और राहदारी के गैर कानूनी तरीके से सफ़र कर रहे थे। तर्जुमान कोस्ट गार्ड ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के बाद इन तमाम अफराद को मज़ीद तफ्तीश और दीगर कानूनी कार्रवाइयों के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की रवा साल सख्त कार्रवाइयाँ, 11,57,000 चालान और 85 करोड़ से ज़ायद जुर्माने के लिए। तफसीलात सलमान लोधी की रिपोर्ट में। कायद में जगह जगह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल और हादसात बढ़ने लगे। 2024 में ट्रैफिक पुलिस ने 11,57,000 के चालान और 85 करोड़ 83 लाख से जायद के जुर्माने किए। इस साल हमने जो ज़्यादा फोकस रखा था वो रॉन्ग वे के ऊपर रखा था कि जिसकी वजह से काफ़ी जो ट्रैफिक का बहाव भी डिस्टर्ब होता है और हादसात भी रूनुमा होते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सबसे ज्यादा गाड़ियों की नंबर प्लेट पर 2,21,000 चालान किए, जिस पर 11 करोड़ 93 लाख रुपए के जुर्माने हुए। ओवरलोडिंग गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस ने 2,03,000 चालान, 10 करोड़ 31 लाख के जुर्माने किए। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 1,96,000 चालान और 12 करोड़ 49 लाख जुर्माने किए। नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर 1,30,000 के चालान और 11 करोड़ 57 लाख के जुर्माने किए। वन वे और रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर 91,000 चालान और 20 करोड़ 20 लाख से जायद जुर्माने किए। मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट न पहनने पर 4 करोड़ 24 लाख, फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर 5 करोड़ 31 लाख, ट्रैफिक की रवानी में रुकावट डालने पर 3 करोड़ 75 लाख, गाड़ियों में स्पीडोमीटर न होने पर 1 करोड़ 7 लाख और टिंटेड शीशे वाली गाड़ियों पर 4 करोड़ 92 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। कैमरामैन नुमान शेख के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। जंग में पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रवा माह 16 लाख रुपए मालियत के 49 मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद करके शहरियों के हवाले कर दिए। DPO जंग ने शहरियों को हिदायत की कि इस्तेमाल शुदा फोन्स की खरीदारी से पहले ई-गैजेट ऐप का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं निज़ाम इंसाफ में वकला बरादरी का किरदार तस्लीम करते हैं। वकला इंसाफ की बरवक्त और मौसर फराहमी यकीनी बनाने के लिए चैलेंजेस का मुकाबला करें। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया इंसाफ की फराहमी में बार की माफनत पर इन्हिसार करती है। अदलिया को कानून की तशरीह, बुनियादी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई है। वकला की पेशा वराना सलाहियत मजबूत बनाने के लिए जुडिशल अकेडमी तरबियत फराहम करेगी। लॉ कमीशन X2 जस्टिस प्रोग्राम की सहूलतों के लिए बार एसोसिएशन को 10 लाख रुपए तकसीम करेगा। प्रोग्राम का मकसद बार एसोसिएशन की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाना है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को वीडियो लिंक सहूलत की फराहमी की यकीन दहानी कराई। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के शिमाली और बलाई इलाके जात आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू का पारा आज -14 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, स्वात, मालाकंड में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कोयटा में शदीद सर्दी की लहर जारी रहेगी और पारा -7 डिग्री तक जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर में आज हल्की बारिश मुतवक्के है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई हुई है। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा यार मोहम्मद से, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर में सर्दी बढ़ती जा रही है। सुबह के वक्त लाहौर के नवाही इलाकों में हल्की धुंध है। आज शहर में के अंदर जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहां पे धुंध ना होने के बराबर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर और शाम के वक्त हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बायस सर्दी मजीद बढ़ सकती है, लेकिन जो खुश्क सर्दी है उसका खात्मा होगा वक्ती तौर पर। मौसमियात का कहना है कि कम से कम शहर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइंदा माह जैसे ही जनवरी का आगाज़ होगा, सुबह और रात के वक्त शदीद धुंध पड़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी
13 विकेट गिरी, 293 रन्स बने। पाक जनूबी अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट का पहला दिन एक्शन से भरपूर रहा। पाकिस्तान टीम 211 पर आउट हुई। प्रोटियाज ने 82 रन्स तक 3 विकेट गंवा दी। मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से आज़ाद कश्मीर में यूथ फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पाक फौज के ताउन से ऑल कश्मीर यूथ फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब मुल्कबाज स्पोर्ट्स स्टेडियम भिम्बर में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ थे। हमारी कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर भर में मैदानों को आबाद किया जाए, उनकी जानिब से कहा गया। करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। नवंबर में करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जो जुलाई 2013 के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरप्लस है। मौजूदा माली साल के पहले 5 माह का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब डॉलर के करीब। गैर कानूनी करेंसी के कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन से तरसलाती ज़र में इजाफा। माली साल 2025 में मजमूई तरसलाती ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। करंट अकाउंट सरप्लस का ज़र मुबादला की शरह को मुसाकम करने और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी में अहम किरदार। स्टेट बैंक के ज़खायर में बेहतरी। माली साल 2025 के लिए 13 अरब डॉलर के हदफ का तयन। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज और सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा जाहिद। मौलाना फजलुर रहमान की जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो जब वो वहाँ से वापस आए तो बताया गया कि उनके पाँव में तकलीफ पैदा हुई है। उनका पाँव जो है वो सूज गया था और डॉक्टर के पास जब गया तो उन्होंने कहा कि आप आराम करें। अब मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह पर मुकम्मल आराम पर हैं और जो उनकी नक़्ल व हरकत है और सियासी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं और तबीयत ठीक होने पर फिर दोबारा सरगर्म पे अमल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।